Hello student, how are you all? Today we are going to start with 4th chapter, Forms of Business Organization. In this chapter we are going to study about the private sector organization. So in the previous chapter we have studied already what is business, correct? Business means what? Production and distribution of goods and services. So now we are going to study about different forms of business organization. Now further, if we will see, the business is basically divided into two. That's private sector organization and public sector organization. What is private sector organization? Which is owned, managed and controlled by the private entities. Okay, the ownership and the management is in the hands of private people. नाउ इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अलावा पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, ऑल्दो कि ये चैप्टर में नहीं है, बट आई विल गिव यू सम आइडिया, सो हमको जो है चैप्टर समझने में आसानी होगी. दूसरा सेक्टर होता है वो है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, वेयर मैनेजमेंट इज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट. उसका जो मैनेजमेंट है, जो कंट्रोलिंग है, वो किसके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में. तो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली ये है कि कोई भी इकोनॉमी में, कोई भी कंट्री में पॉसिबिलिटीज आर there. Either the country is dominated by private sector organization, that is called as capitalist economy, or the other possibility is that the economy is dominated by the government organization, that is called as socialist economy. And there are some countries where both the sectors are there, private sector is also there and public sector is also there, that is called as mixed economy. So in order to understand, let me tell you that if I talk about private sector organization dominating country, अच्छा 100% कहीं भी नहीं होगा कि 100% प्राइवेट सेक्टर ही है, 100% पब्लिक सेक्टर ही है, ऐसा कहीं भी नहीं है. बट USA is a good example where private sector is dominating. Okay, China is a good example of socialist economy where public sector is dominating. If I talk about mixed economy, India is a good example जहाँ पर प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों भी है. अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में बहुत से हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज है जो बहुत ग्रोइंग है, बहुत ज़्यादा उसमें ग्रोथ है आज के टाइम पे. दैट इज़ BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसमें बिजनेस के कोई एक प्रोसेस को आउटसोर्स किया जाता है, मतलब दूसरी कोई कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल मेनी कंपनीज दे हैव कॉल सेंटर. ये जो प्रोसेस है कस्टमर्स के कंप्लेन को हैंडल करना है, उस एक प्रोसेस को किसको दिया जाता है? एक दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जो अटेंड करती है कस्टमर्स को. तो वो एक जो प्रोसेस है वो आउटसोर्स किया जाता है. सेम वे सिक्योरिटीज है कंपनीज में, या हाइजीन मेंटेन करना है उस. Apart from BPO, there are other companies which has a tremendous growth in India. Software companies are there. IT industry is booming in India. Then there are private banks, financial services companies, and also there are various manufacturing companies also which is growing very fast, like automobile, टेक्सटाइल, एग्रो फूड एक्सेट्रा. तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ है इंडिया में. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी what are the different types of private sector. The first one is sole proprietorship or sole trading concern. So here sole means single, trading means business. We have already studied trade means buying and selling of goods and services. Concern means the organization or enterprise. So in sole trading concern, what happens? The proprietor is the single person who is running the business. He is handling all the things. वही मैनेज कर रहा है, वही कंट्रोल कर रहा है, उसी ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, एंड ऑल द प्रॉफिट गोज टू दिस सोल प्रोप्राइटर. ओके, इसको ये भी बोलते हैं वन मैन शो. वन मैन शो मीन्स एवरीथिंग इज इन द हैंड ऑफ वन पर्सन ओनली. इफ यू आस्क मी अबाउट द एग्जांपल्स, lot of examples are there. एक नॉर्मल पर्सन, द पर्सन हु इज सेलिंग एनी काइंड ऑफ गुड्स ऑन द रोड, और इफ यू सी एनी शॉप्स, if it is run by a single person, that is called a sole trading concern. क्या कंडीशन है? उसी ने इन्वेस्ट किया है उसमें पैसा बिजनेस में, वही उसको चला भी रहा है, मैनेज भी खुद ही कर रहा है, और
क्या है, उसका प्रॉफिट भी अगर उसी को मिल रहा है तो उसको बोलेंगे सोल ट्रेडिंग कंसर्न। जो आप नॉर्मल शॉप पे भी जाते हो, जहाँ पर एक शॉपकीपर होता है, वहाँ पर दैट इंडिविजुअल हैज इन्वेस्टेड द मनी, ही हैज बॉट द शॉप एंड ही इज रनिंग दैट शॉप, so that is a soul trading concern. Now there are some definition according to Professor J. Hansen. What he is saying, sometime known as one-man business, it is a type of business unit where one person is solely responsible for providing the capital, for bearing the risk of an enterprise and for the risk of ownership. So it's a simple definition. What he is saying, ये कैसा business है, ये one-man business है. यहाँ पर a single person is only responsible for running the business and he has invested the capital in the business, plus he is bearing the risk. In any kind of business there is always risk. हमने ये पहले फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि रिस्क इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस. अगर बिजनेस में रिस्क नहीं है तो वो उसको बिजनेस नहीं बोलेंगे. तो ये क्या कर रहा है, ही इज बेयरिंग द रिस्क एंड ही इज फॉर बेयरिंग द रिस्क ऑफ एन एंटरप्राइज एंड फॉर द रिस्क ऑफ ओनरशिप. वो इसका भी बिजनेस का भी रिस्क बेयर कर रहा है, प्लस वो ओनरशिप का भी रिस्क बेयर कर रहा है. दैट मीन्स ही इज द ओनर एंड सिंस ही इज द ओनर ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस. ओके, ही इज बेयरिंग ऑल द रिस्क व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस. नेक्स्ट, प्रोफेसर जेम्स लेंडे, व्हाट ही इज सेइंग, द सोल प्रोप्राइटरशिप इज एन इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस owned by one person. So it is an informal business, means anybody can start the business. There is no need for any kind of registration. If you are starting a soul trading concern, as I told you, the person who is selling the goods on the road, he has invested some amount of capital in that way and he is selling that goods. So it is a type of informal business only because he has not registered with any kind of organization. There is no need for registration and this business is owned by that particular person. So that is called as sole proprietorship. Now what are the features of sole proprietorship? First is individual ownership. So ownership किसके हाथ में? एक single person के हाथ में है, because he has invested the capital and he only owns all the assets of the business. Now what are the assets? जो for example if I talk about shop, so all the furniture in the shop, all the goods which are there in the shop, that is will be called as his assets. अगर उसके शॉप पे फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर है, उसके आपके पास एक फर्नीचर्स वगैरह है, उसकी खुद की शॉप, वो भी क्या है? उसका असेट है. जो भी इस बिजनेस की लायबिलिटीज है, बिजनेस का डेब्ट है, वो भी उसका अपना ही रहेगा. Nobody else is going to pay on his behalf. Next is no sharing of profit and risk. Since he is a single owner, उसे अपने प्रॉफिट किसी से शेयर भी नहीं करना है, क्योंकि उसने खुद ही पैसा लगाया है, तो जाहिर सी बात है सारा प्रॉफिट तो उसका खुद का ही होगा ना. एंड ऑल्सो जो भी रिस्क है बिजनेस में, रिस्क कौन सी टाइप का हो सकता है? रिस्क जो है इंश्योरेबल एंड नॉन इंश्योरेबल, दोनों टाइप का रिस्क होता है. इंश्योरेबल रिस्क मींस फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग ही कैन टेक इंश्योरेंस. Like for example, loss of goods by theft, he can take insurance for that. तो अगर चोरी हो जाती है तो उस कंपनी जो है उसको पे करेगी, इंश्योरेंस कंपनी. So that is called as insurable risk, and non-insurable means for that he cannot take insurance. For example, suddenly there may be change in the government policy and that is affecting business. Suddenly there is a change in taste or there is a change in taste and preferences of the people. So ये सारी चीजें जो है, ये इसमें कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता है. अगर लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो रहा है तो उसमें कोई इंश्योरेंस आपको नहीं देगा. तो ये सारी चीजें, ये जो रिस्क है, इंश्योरेबल एंड नॉन इंश्योरेबल रिस्क है, वो कौन बेयर करता है? दिस सोल ट्रेडर. ओके, इट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. इट इज लाइक अ टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. फॉर एग्जांपल, इफ द पर्सन इज अनएम्प्लॉयड, ही कैन स्टार्ट हिज ओन स्मॉल बिजनेस and he can earn his livelihood. वो अपना घर चला सकता है ना. You don't need to search for the employment. So it's like a self employment. Next is local market operation. Local market में क्यों है operation? Because this person is single person. He cannot go beyond certain limit in case of capital and in case of managerial ability both. Because if you see a single person doesn't have that much money to make MNCs. ओके, मल्टीनेशनल कंपनी वो खड़े नहीं कर सकता. इतना पैसा एक सिंगल पर्सन के हाथ में नहीं होता है नॉर्मली. सेकेंडली, एक सिंगल पर्सन के हाथ में इतने मैनेजरियल स्किल्स भी नहीं होते कि वो सारे जो है मैनेजरियल स्किल, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, सारी चीजें जो है वो एट चीजें संभाल सके. वो अकाउंट्स भी देख रहा है, दैट ही इज हैंडलिंग कस्टमर आल्सो एंड ही इज इन टॉक विद सप्लायर.
सो सारी चीजें उसको देखना है, तो उसके लिए काफी एक्सपर्ट मैनेजरियल स्किल की जरूरत होती है। तो एक सिंगल पर्सन जो है वो सारी स्किल्स में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। ओके, नॉर्मली आप एक पर्सन जो है उसके पास एक या दो स्किल में तो एक्सपर्ट हो सकता है। दैट्स व्हाई दिस पर्सन, दिस सोल ट्रेडर कैन ओनली ऑपरेट इन लोकल मार्केट। नेक्स्ट इज नो सेपरेट लीगल स्टेटस। नाउ इन सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सोल ट्रेडर and the sole trading concern doesn't have separate legal identity. In the eyes of law, they both are treated as one and the same. तो जैसे एग्जांपल इसका समझा के बताती हूँ कि एग्जांपल, अगर कोई केस कर रहा है इस ट्रेडिंग कंसर्न पे, तो वो केस उस सोल ट्रेडर पे चलता है ना। ऐसा नहीं है कि वो सोल ट्रेडर डिफरेंट है। या फॉर एग्जांपल अगर लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी किसको पे करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर वो लाइबिलिटी किसको पे करना है, द सोल ट्रेडर ओनली हैव टू क्लियर द लाइबिलिटी, द सोल ट्रेडर ओनली हैव टू क्लियर द डेब्ट। सो इन द आईज ऑफ लॉ, द सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड द सोल ट्रेडर, they both are treated as one and the same. Next is minimum government regulation. So there is no separate act or law to govern the activities of sole trading concern. So as I told you, there is no need for any kind of registration. कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। मैंने बताया कि एक पर्सन रोड पे भी जो है अगर वो खुद का कैपिटल लगा के अगर वो सेल कर रहा है और वो उसको मैनेज कर रहा है, तो वो सोल ट्रेडर ही है। तो क्या उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन है, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं। सिंपल टैक्स लॉ उसको फॉलो करना है और लेबर लॉ जो है उसको फॉलो करना है। बहुत सिंपल है, कोई फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। सो ये लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड, इस वर्ड का मतलब क्या है अनलिमिटेड। एज आई टोल्ड यू कि क्या है कि यहाँ पे देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिजनेस प्रॉपर्टी, के बीच में कोई फर्क नहीं है। अगर लॉस होता है और कंपनी जो उसकी दुकान, उसके जो बिजनेस के एसेट्स है, if that is not sufficient to pay off the debt, so what will happen, his personal property will be used to clear the debt. अब liability जितनी भी है उसे ही पे करना है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होती है, लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जिसके हम लोग शेयर्स लेते हैं। नॉर्मली जो शेयर मार्केट में जो शेयर्स बिकते हैं वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो जस्ट ब्रीफ आइडिया just to make you understand, I'm telling you, उसमें अगर कोई लायबिलिटी है कंपनी की, शेयर होल्डर को अपने जेब से बिल्कुल पे नहीं करना है। लायबिलिटीज लिमिटेड होती है अप टू ओनली अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। अगर 10 रुपीज का शेयर है तो वहाँ पर अगर उसने फॉर एग्जाम्पल 7 रुपीज पे किए तो 3 रुपीज अनपेड है। दैट मीन्स शेयर होल्डर की लायबिलिटी कितनी होगी, 3 रुपीज ओनली। इन केस ऑफ अ हैवी लॉस और डेब्ट, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू क्लियर द डेब्ट यूजिंग हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। ठीक है, वो कंपनी का अपना डेब्ट है, वो कंपनी उसके असेट्स को सेल करके उसको क्लियर करेगी, लेकिन पर्सनल शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी टू क्लियर द डेब्ट। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है सोल ट्रेडिंग कंसर्न में। यहाँ पर जितनी भी लायबिलिटी है वो किसको पे करना है, सोल ट्रेडर को खुद ही पे करना है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। बेनिफिट क्या है या पॉजिटिव पॉइंट क्या है सोल ट्रेडिंग कंसर्न के। फर्स्ट इज इजी फॉर्मेशन। Now as I told you, there are no legal formalities, there is no need for any kind of registration, so minimum legal formalities hai, anybody can start the business anytime. Next is quick decision. Now since the sole trader, he is a single person, he don't need to consult anybody, he don't need to take advice from anybody, and he is also not answerable to anybody. उसको किसी को आंसर नहीं देना है, so he can take decision anytime and he can take, for example, if there is a certain change in the market, say an example अगर मैं बताऊँ लोगों के टेस्ट में कुछ changes आए तो he can take quick decision और accordingly वो अपने जो है शॉप या बिजनेस में changes ला सकता है। Quick action is possible in sole trading concern. Next is maximum secrecy. Now maximum secrecy is maintained because again he don't need to consult anybody. अब जब उसके बिजनेस के सीक्रेट वो अपने ही रहेंगे, वो उसको किसी को शेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग दूसरे फॉर्म से ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, पार्टनरशिप है या जॉइंट स्टॉक कंपनी है, वहाँ पर क्या होते हैं, बिजनेस के सीक्रेट्स शेयर करने पड़ते हैं। पार्टनरशिप है तो पार्टनर से शेयर करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर उसको किसी से भी कुछ शेयर करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ही इज अ सिंगल पर्सन रनिंग द बिजनेस, सो मैक्सिमम सीक्रेसी कैन बी मेंटेन। नेक्स्ट इज डायरेक्ट मोटिवेशन। नाउ देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द हार्ड वर्क एंड मोर प्रॉफिट। इफ दिस पर्सन इज वर्किंग हार्ड, he will definitely earn more profit. So there is a direct motivation
to earn maximum profit, and he also tries very hard to work for earning more profit. अब उसको समझने के लिए इनडायरेक्ट मोटिवेशन क्या होता है वो समझने के लिए एग्जांपल अभी जॉइंट स्टॉक का ही देखेंगे। जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर्स कोई और परचेज करता है, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, एम्प्लॉइज वहाँ रहते हैं, एम्प्लॉइज वर्क एंड दे वर्क ऑन सैलरी बेसिस। सो इवन इफ दे आर वर्किंग हार्ड, व्हाट हैपेंस, वहाँ पर क्या होता है, उनको फिक्स्ड सैलरी ही मिलने वाली है। वहाँ उनको ऐसा नहीं है कि ज्यादा सैलरी मिल जाएगी किसी वीक, अगर किसी हफ्ते उन्होंने ज्यादा हार्ड वर्क किया तो उनको फिक्स्ड सैलरी, तो वहाँ पर कोई डायरेक्ट मोटिवेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जितना हार्ड वर्क उतना ज्यादा प्रॉफिट, डायरेक्ट मोटिवेशन। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी मीनिंग होता है देयर इज एन इलास्टिसिटी। इसमें क्या होता है कि हम जब चाहे डिसीजंस चेंज कर सकते। सोल ट्रेडर क्या है, जब चाहे, इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि जब उसकी मर्जी हो वो डिसीजंस ले सकता है, उसको चेंज भी कर सकता है। ठीक है, इवन वो चाहे तो पूरा अपना लाइन ऑफ बिजनेस चेंज कर दे। ठीक है, उसको लगता है कि नहीं ये लाइन अच्छी नहीं है, कोई और चीज बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल है, तो उस बिजनेस में वो जा सकता है। इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है because everything depend on this single person, so I think it has maximum flexibility. Rigidity जरा भी नहीं है इसमें। Next is lower cost. Now cost is low because this single person is managing all the activities. सारी चीजें इसके अपने हाथ में है। ठीक है, ये पूरा बिजनेस का जो कंट्रोलिंग एंड मैनेजमेंट everything is in the hands of this single person. So definitely he will try to minimize the wastage, and because of the मिनिमम वेस्टेज कॉस्ट ऑल्सो लोअर्स डाउन। कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी। ना एफिशिएंसी इसीलिए है बिकॉज ही इज वर्किंग हार्ड, एज आई टोल्ड यू डायरेक्ट मोटिवेशन है, ज्यादा हार्ड वर्क ज्यादा प्रॉफिट। सेकेंड थिंग इज ही इज ऑल्सो अवॉइडिंग वेस्टेजेस। तो किसी भी तरीके का वेस्टेज हो, चाहे वो पैसा, मनी, टाइम, मटेरियल, किसी भी तरीके का वेस्टेज अवॉइड हो रहा है, प्लस देयर इज अ डायरेक्ट मोटिवेशन। सो व्हाट हैपेंस, दिस ब्रिंग्स more efficiency in the work। तो जो भी काम होगा वो बहुत efficient तरीके से होगा, जिसका रिजल्ट क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। Now these are the merits of soul trading concern. Now next is demerits of soul trading concern. Next demerits में क्या है, first is limited capital. Now capital is limited because this single person, as I told you, he is arranging all the money or the capital. What is his limit? कितना जाएगा? He can ask for some loan from the friends or relatives, or what he can do, he can take a loan from the bank. Not like joint stock company जहाँ पर शेयर इशू करके thousands and thousands of people से पैसा लिया जाता है। यहाँ पर वो चीज है ही नहीं। यहाँ पर एक ही पर्सन को अरेंज करना सारा कैपिटल, एंड वन पर्सन के लिए ये बहुत डिफिकल्ट है कि वो बहुत ज्यादा कैपिटल का अरेंजमेंट कर सके, तो वहाँ पर ये एक लिमिट आ जाती है। Next is limited managerial skill, and managerial skill is limited because the single person cannot be expert in all the aspect or on all the managerial skill. He can be expert in few, जैसे for example वो अच्छा organizer है, जैसे मैं भी example he talks very efficiently with the customer, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसके skills lack करेगी। So, हर चीज में एक बंदा एक्सपर्ट हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। इसलिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए अगेन इफ आई कंपेयर विद जॉइंट स्टॉक कंपनी, व्हाट हैपेंस इन जॉइंट स्टॉक कंपनी, experts are hired. जॉइंट स्टॉक कंपनी में वेरियस डिपार्टमेंट्स आर देयर, अकाउंट्स डिपार्टमेंट इज डिफरेंट, then marketing department, finance department, and in each department they hire the expert, those who have done MBA, those who have experience, and also this person get high salary because they have that managerial skill to manage a particular department. But this doesn't happen in case of sole trading concern. Next is unlimited liability. Liability is unlimited because, as I told you, there is no difference between the personal property of the business sole trader and the property of the business. So if there is a debt, the business assets are not enough to clear that debt, then personal property of the sole trader can be used. Next is lack of stability, and there is no stability. I can say it has minimum stability. If you compare with other forms of organization, पार्टनरशिप में क्या होता है, एक पार्टनर अगर उसको कुछ हो जाता है, अदर पार्टनर्स कैन कंटिन्यू. In case of joint stock company also, there are thousands and thousands of shareholders are there. If one shareholder dies or anything happens, it is not going to affect the company at all. But what happens in sole trading concern, if this
person, the sole trader, is not well or he's having some problem, definitely it is going to affect his business. उसका पूरा बिजनेस उस सोल ट्रेडर पे ही डिपेंड है, उस सिंगल पर्सन पे ही डिपेंड है, तो इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी मिनिमम है इसमें। नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। ना क्या है यहाँ पर, स्पेशलाइजेशन नहीं होती है। जैसे एक पर्सन है वो जो है हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। एक से फ्रेज है, ही इज ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। एक जो पर्सन है वो हर चीज करता है लेकिन वो किसी में मास्टर नहीं हो सकता है, बिकॉज क्या है उसमें क्या है, स्पेशलाइजेशन नहीं आ सकती है। नेक्स्ट इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन। लार्ज स्केल ऑपरेशन, बड़े बड़े जो बिजनेस है उनके लिए सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट द राइट थिंग, बिकॉज यहाँ पर हर चीज क्योंकि सिंगल पर्सन पे डिपेंड है, तो लार्ज स्केल के बड़े ऑपरेशन उसके लिए जो है ज्यादा पैसा, ज्यादा मैनेजर स्किल, सब चीजों की जरूरत है जो पॉसिबल है पार्टनरशिप या जो स्टॉक कंपनी में। सोल ट्रेडिंग में वो चीजें पॉसिबल नहीं है। लार्ज स्केल पे, लार्ज स्केल बिजनेस को एक लिमिट हो जाती है, बियॉन्ड सर्टेन लिमिट दिस बिजनेस कैन नॉट बी एक्सटेंडेड।